السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ مرکب توصیفی پڑھیں گے، یعنی ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوگا، اور ایک دوسرا اسم ہوگا جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہوگی۔ تو جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے عربی گرامر کی اصطلاح میں موصوف کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ موصوف۔ اور جس اسم کے ذریعے سے اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے اس اسم کو صفت کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہوئی، ایک موصوف اور ایک صفت۔ مرکب توصیفی میں کتنے کلمے ہوں گے؟ دو، ایک موصوف ہوگا اور ایک صفت ہوگی۔ موصوف کس کو کہیں گے؟ موصوف اس اسم کو کہیں گے جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہوگی۔ اور صفت کس کو کہیں گے؟ صفت اس اسم کو کہیں گے جس اسم کے ذریعے سے اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو۔ اردو میں ایک مثال دیکھ لیں، جیسے ہم نے کہا نیک لڑکا۔ کیا کہا؟ نیک لڑکا۔ اس میں دیکھ لیں نیک، نیک ہونا ایک صفت ہے نا۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کلمے کے ذریعے سے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ کس کی؟ لڑکا کی۔ تو اس نیک کو کیا کہیں گے؟ صفت کہیں گے۔ اور صفت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ لڑکے کی۔ تو اس لڑکا کو کیا کہیں گے؟ لڑکا کو موصوف کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ موصوف ہو گیا اور یہ صفت۔ اردو میں پہلے صفت آتی ہے اور بعد میں موصوف آتا ہے، لیکن عربی میں پہلے موصوف آئے گا اور بعد میں صفت آئے گی۔ تو ایک چیز آپ نے دیکھ لیا۔ کیا دیکھا؟ ایک چیز کہ مرکب توصیفی میں ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتی ہے۔ دوسری چیز نوٹ کر لیں کہ جو مرکب توصیفی ہوتا ہے، مرکب توصیفی والے یعنی ایسے دو کلمے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو، اور ایک ایسا اسم جس اسم کے ذریعے سے اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہو، تو یہ دونوں اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ موصوف معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو موصوف اگر معرفہ ہوگا تو خبر بھی معرفہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، موصوف اگر نکرہ تو صفت بھی نکرہ۔ اعراب کے اعتبار سے دیکھ لیں، اعراب کے اعتبار سے موصوف اگر رفع میں تو صفت بھی رفع میں، موصوف اگر نصب میں تو صفت بھی نصب میں، موصوف اگر جر میں تو صفت بھی جر میں۔ اس کے بعد عدد کے اعتبار سے دیکھ لیں، موصوف اگر واحد تو صفت بھی واحد، موصوف اگر مثنی تو صفت بھی مثنی، موصوف اگر جمع تو صفت بھی، اور کون سا پہلو باقی رہ گیا؟ جنس۔ جنس کے اعتبار سے بھی دونوں ایک جیسے ہوں گے، یعنی موصوف اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث۔ یعنی موصوف اور صفت کو پہچاننے کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ دونوں کو دیکھنا ہے، دونوں اگر ایک جیسے دکھے تو سمجھ لے کہ مرکب توصیفی ہے، یعنی مرکب ناقص ہے، موصوف صفت والا ہے مرکب۔ ہم نے بورڈ پر جو لکھا ہے اس کو دیکھیں غور سے۔ بورڈ پر ہم نے جو لکھا ہے کیا وہ دونوں ملتے جلتے ہیں؟ الولد مجتہد، یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، مل رہے ہیں دونوں؟ مرکب توصیفی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے جو پہلے پڑھا ہے مرکب تام، وہ ہے مرکب تام میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں دو کلمے ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ پہلا کلمہ جو مبتدا ہوگا یہ معرفہ ہوگا اور دوسرا نکرہ۔ اعراب کے اعتبار سے دونوں مرفوع ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ مرفوع ہوں گے، حالت الرفع میں ہوں گے۔ اور عدد اور جنس کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یہ واحد تو یہ بھی واحد، یہ مثنیٰ تو یہ بھی مثنیٰ، اور یہ جمع تو یہ بھی جمع۔
मुब्तदा मुज़क्कर तो खबर भी मुज़क्कर, मुब्तदा मुअन्नस तो खबर भी मुअन्नस। उस एतबार से देखिए अभी तर्जमा क्या है, अल वलदु मुजतहिदुन, लड़का मेहनती है, लड़का मेहनती है, लड़का मेहनती है, ये मुब्तदा है और ये खबर है। मुब्तदा और खबर मिलकर के क्या बनता है, जुमला, जुमला इस्मिया। ठीक, अच्छा, अल वलदु मुजतहिदुन, लड़का मेहनती है। इन्हीं दो कलेमों को, इन्हीं दो इस्मों को अगर हम चाहेंगे तो मुरक्कब तौसीफी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, यानी एक को मौसूफ बना देंगे और दूसरे को सिफत बना देंगे। कैसे बनाएंगे, आसान सा फार्मूला है, देख ले। तीन हिसाब से तो हमारे हिसाब से है, तीन एतबार से। क्या क्या, ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर है ना, अच्छा, ये वाहिद है तो ये भी वाहिद है, ये रफ़ा में है तो ये भी, तीन चीजों में तो एक जैसे हैं। सिर्फ एक चीज है जिनको हमें यहां ठीक करना है, और वो ये कि ये मारिफा है और ये नकेरा है। इसे भी अगर मारिफा बना दें, इसे भी अगर, तो ये मुरक्कब तौसीफी हो जाएगा, यानी एक मौसूफ हो जाएगा और दूसरा उसकी सिफत हो जाएगी। मारिफा बनाने के लिए, नकेरा इसमें को मारिफा बनाने के लिए क्या किया जाता है, अलिफ लाम लगाया जाता है। अलिफ लाम और तनवीन क्या दोनों एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो तनवीन को हल्की कर देंगे। क्या बचेगा, अल वलदुल मुजतहिदु, अल वलदुल मुजतहिदु। ठीक है, अब तर्जमा वो नहीं होगा जो पहले हो रहा था। पहले क्या हो रहा था, लड़का मेहनती है। अब जब मौसूफ और सिफत आपने बना दिया इनको, तो तर्जमा अब इधर से करेंगे, मेहनती लड़का। क्या करेंगे, मेहनती लड़का। अब ये बताएं कि अल वलदुल मुजतहिदु एराब के एतबार से कौन सी हालत में है, हालतुर रफ़ में, ये वाज़ेह है। और जब हालतुर रफ़ में एक होगा तो दूसरा भी लाजिमन होगा। ठीक है, ये बात नोट कर ले। अच्छा, याद कर ले कि कोई भी मुरक्कब हो, कोई भी इसम हो, उसकी असली हालत हालतुर रफ़ है। क्या है, अगर ये हालतुन नस्ब में जाएगा तो किसी वजह से जाएगा। नहीं समझ में आई बात, यानी हालतुन नस्ब में जाने की कोई ना कोई वजह होगी। अगर ये हालतुल जर में जाएगा, अगर ये हालतुल जर में जाएगा तो हालतुल जर में जाने की कोई ना कोई वजह होगी। अच्छा, जो वजह होगी वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम इतना देख लेते हैं कि अगर ये कलिमा अल वलदुल मुजतहिदु, ये मुरक्कब अगर नस्ब में जाता है तो उसकी शक्ल क्या होती है, उसकी क्या शक्ल होती है। तो देख ले, हमने पहले भी पढ़ा था कि वाहिद इसमें जो होता है तो रफ़ा में ज़म्मा के साथ होता है, नस्ब में फतहा के साथ और जर में कसरा के साथ। तो नस्ब में अगर जाएगा तो इसकी शक्ल बन जाएगी अल वलदा अल मुजतहिदा, यानी दोनों नस्ब में चले जाएंगे। मौसूफ भी नस्ब में चला जाएगा और सिफत भी नस्ब में चली जाएगी, यानी जैसे मौसूफ नस्ब में गया तो सिफत भी नस्ब में चली जाएगी। अच्छा, अगर इसको हालतुल जर में लेके जाना हो और उसकी शक्ल देखना हो तो उसकी शक्ल यूं होगी अल वलदिल मुजतहिदी। नस्ब या जर में किसी वजह से ये दोनों कले में जाएंगे, जो भी वजह होगी, लेकिन अभी शक्ल देख ले। तो रफ़ा में अल वलदुल मुजतहिदु, नस्ब में अल वलदल मुजतहिदा और जर में अल वलदिल मुजतहिद। ठीक है, अच्छा, दूसरा देखे, अल वलदानी मुजतहिदानी, दोनों लड़के मेहनती हैं। अब देख ले, ये मुसन्ना है तो ये भी मुसन्ना है, ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर है, ये रफ़ा में है तो ये भी रफ़ा में है। जो मुसन्ना रफ़ा में कैसे होता है, अलिफ और नून मकसूर के साथ, आने की आवाज के साथ। ठीक है, तो तीन एतबार से तो ठीक है, सिर्फ एक एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उसको ठीक करना है। क्या है, ये मारिफा के साथ है और ये नकेरा है, यानी ये अल के साथ है और ये बगैर अल के है, तो इस पर अल लेकर के आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अल वलदानिल मुजतहिदानी। अच्छा, तो अभी तक तर्जमा कर रहे थे दोनों लड़के मेहनती हैं, लेकिन अब इधर से तर्जमा करेंगे दो मेहनती लड़के। क्या तर्जमा करेंगे, दो मेहनती लड़के। अच्छा, ये कभी
जुमलों में नस्ब में जाएगा, कभी जर में जाएगा। जाने की कोई वजह होगी, लेकिन शक्ल क्या होगी, शक्ल देख ले। शक्ल अल वलदानी हो जाएगा नस्ब में, अल वलदैनी क्या हो जाएगा, अल वलदैनी। और अल मुज्तहिदानी क्या हो जाएगा, अल मुज्तहिदानी क्या बन जाएगा, अल मुज्तहिदैनी। अल मुज्तहिदैनी, ठीक है। अल मुज्तहिद दो माना से वही होगा, दो मेहनती लड़के, दो मेहनती लड़के, दो मेहनती लड़के। जर में क्या होगा, अल वलदैनिल मुज्तहिदैनी। मुसन्ना नस्ब और जर में एक ही जैसे होते हैं, तो अल वलदैनिल मुज्तहिदैन नस्ब और जर में। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखें कि रफ में हो कि नस्ब में हो कि जर में हो, माना में कोई तब्दीली नहीं आती, माना वही रहेगा जो रफ में माना दे रहा था। अच्छा, अल औलादु मुज्तहिदूना, लड़के मेहनती हैं, तीन एतबार से ठीक है। सिर्फ ये मारिफा है और ये नकेरा है, क्या करना पड़ेगा यहां मौसूफ सिफत बनाने के लिए, अल औलादुल, अब तर्जमा हो जाएगा मेहनती लड़के, क्या हो जाएगा, मेहनती लड़के, ये तर्जमा हो जाएगा। इधर से मौसूफ सिफत वाला तर्जमा इधर से किया जाता है अरबी में, यानी पहले सिफत का तर्जमा करेंगे उर्दू में और उसके बाद मौसूफ को लाएंगे हमारे उर्दू के हिसाब से, ठीक है। अगर इसे हम नस्ब में लेके जाएंगे तो अल औलादु नस्ब में क्या होगा, क्या होगा, जोर से बोले, अल औलादा, गुड, अल औलादा। अच्छा, अल मुज्तहिदूना, ये जम मुज़क्कर सालिम रफ की शक्ल है, नस्ब की शक्ल में क्या होगा, जोर से बोले, अल मुज्तहिदीना, ठीक, अल मुज्तहिदीना, ठीक है। मतलब मेहनती लड़के, वही माना मेहनती लड़के, ये भी मेहनती लड़के। और जर में क्या होगा, सेम होगा, अल औलादल मुज्तहिदीना। अच्छा, अब देखिए मुअन्नस की तरफ आ जाए, अल बिन्तु आबिदतुन, अभी तक इसका माना है लड़की आबिदा है, लड़की आबिदा, लड़की इबादत गुजार है, ठीक है। अब अगर इसको मौसूफ बनाना चाहे और इसको सिफत बनाना चाहे, कहां क्या कमी है उसको दूर करना चाहे, तो देख रहे हैं कि इसमें और इसमें सिर्फ एक चीज की कमी है, इसमें अलिफ लाम है और इसमें अलिफ लाम नहीं है। अलिफ लाम लगा करके मारिफा कर देते हैं और अलिफ लाम लाते ही तनवीन चली जाएगी, अल बिन्तुल आबिदतु। अब इधर से तर्जमा करेंगे आबिदा लड़की, इबादत गुजार लड़की। अगर इसको हम नस्ब में लेकर के जाए, नस्ब में जाए कि जर में जाए, माना में कोई तब्दीली आएगी, माना वही रहेगा, इबादत गुजार लड़की। नस्ब में जाएगा तब भी, जर में जाएगा तब भी, इबादत गुजार लड़की, आबिदा लड़की। नस्ब में क्या होगा, अल बिन्तल आबिदता, ठीक है। और अगर जर में ले जाते हैं तो अल बिन्तिल आबिदती। यहां कुछ नहीं करना है, बस फथा फथा, कसरा कसरा, ठीक। अच्छा, अल बिन्तानी आबिदतानी, अभी तक इसका माना है दोनों लड़कियां आबिदा हैं, दोनों लड़कियां आबिदा हैं, इबादत गुजार हैं, ठीक है। ये अभी रफ़ा में है, अभी ये रफ़ा में है, और ये मुब्तदा और खबर है। इसको मौसूफ सिफत बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, बस अल आबिदतानी। अब तर्जुमा क्या होगा, दो आबिदा लड़कियां, दो आबिदा, दो इबादत गुजार लड़कियां, ठीक है। ये रफ़ा में है। नस्ब में लेके जाना चाहे तो पहले ये मौसूफ, नोट कीजिए कि पहले मौसूफ ही किसी हालत में जाएगा, फिर उसके बाद उसकी सिफत बदलेगी, ठीक है। अल बिन्तानी नस्ब में क्या हो जाएगा, अल बिन तैनी, अल बिन तैनिल आबिदा, दो आबिदा लड़कियां, माना में कोई तब्दीली नहीं, ये नस्बे में हो गया। दो आबिदा लड़कियां, रफा में भी वही माना, नस्बे में भी वही माना, जर में लेके जाएंगे तो क्या होगा, सेम, दो आबिदा लड़कियां,
माना भी नहीं बदलेगा और नस्ब और जर शक्ल भी नहीं बदलेगी। अब ये जमा देख ले, लड़कियां आबिदा हैं, लड़कियां इबादत गुजार हैं। अभी ये मुब्तदा है और ये इसको मौसूफ और इसको सिफत बनाना चाहें तो बस एक काम करना है, इस पर अलिफ लाम लेके आ जाएंगे, तनवीन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अल बनातुल आबिदातु, आबिदा लड़कियां, आबिदा लड़कियां। अब इधर से तर्जमा करेंगे, आबिदा लड़कियां, इबादत गुजार लड़कियां। ठीक है, ये अभी रफ़ में है। नस्ब में लेके जाएंगे तो अल बनातिल, अल बनातिल आबिदाती। जर में वही अल बनातिल आबिदा, यानी नस्ब और जर दोनों में एक जैसे होंगे। मुसन्ना में भी नस्ब और जर एक जैसे, जमा मुज़क्कर सालिम में भी नस्ब और जर एक जैसे, और जमा मुअन्नस सालिम में भी नस्ब और जर एक जैसे। ठीक है, तो मुरक्कब तौसीफी हमारे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि चारों लिहाज से दो ही बात है। मुरक्कब तौसीफी में दो बात है। एक बात तो यह है कि एक कलेमा मौसूफ होगा और दूसरा उसकी सिफत होगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि चारों लिहाज से दोनों एक जैसे होंगे। क्या मतलब, यानी अगर मौसूफ रफ़ में तो सिफत भी रफ़ में, मौसूफ नस्ब में तो सिफत भी नस्ब, मौसूफ जर में तो सिफत भी जर में, मौसूफ वाहिद तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ मुसन्ना तो सिफत भी मुसन्ना, मौसूफ जम तो सिफत भी जम। और जिनसी के एतबार से ये मुज़क्कर तो ये भी मुज़क्कर, ये मुअन्नस तो ये भी, मारिफा नकिरा के एतबार से दोनों, या तो दोनों मारिफा होंगे या तो दोनों नकिरा। अब इसको देख ले, यहां तो हमने मारिफा की मिसालें देख ली, मारिफा की मिसालें देख ली, नकिरा की एक मिसाल देख लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास को खत्म करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसे नकिरा बनाए, क्या बनाए, तो दोनों को नकिरा बनाना होगा। नहीं आई बात समझ में नहीं आई, दोनों को नकिरा बनाना होगा। और नकिरा की उर्दू में पहचान यह है कि जब तर्जमा करेंगे तो कोई, एक, कुछ, ऐसा, इस तरीके से तर्जमा किया जाता है उर्दू में। ठीक है, लेकिन अरबी में पहचान तो बहुत आसान है, अरबी में देख लें। अगर हम चाहते हैं कि अल वलादुल मुज्तहिदु को, जो कि अभी तक था मेहनती लड़का मारिफा के साथ, अब उसे नकिरा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हरकत मिटा देता हूं मैं, ये जो देख ले, अल वलादुल मुज्तहिदु जो है क्या हो जाएगा, क्या होगा, वलादुल मुज्तहिदुन, बिल्कुल सही, वलादुल मुज्तहिदुन। नस्ब में क्या होगा, वलादल मुज्तहिदन, वलादल, जर में वलादिल मुज्तहिदिन। ठीक है, तो नकिरा का भी समझ, वलादुल मुज्तहिदुन का जब उर्दू में हम तर्जमा करेंगे, एक मेहनती लड़का, कोई मेहनती लड़का, इस तरीके से उर्दू में तर्जमा किया जाता है। खैर हम लोग जब तर्जमे करेंगे तब देखेंगे, अभी पहचान कर ले कि ये नकिरा का मुरक्कब है। क्या है ये, मुरक्कब तौसीफी नकिरा है ये। ठीक, अच्छा, इसे अगर हम बदलना चाहें तो क्या करेंगे, वलादानी मुज्तहिदानी, दो मेहनती लड़के, कोई दो मेहनती लड़के, कोई दो मेहनती लड़के। अच्छा, नस्ब जर में वलादाइनी मुज्तहिदैनी, नस्ब में भी वही और जर में भी वही। ठीक, दो मेहनती लड़के, माना कोई दो मेहनती लड़के। ठीक, अच्छा, जमा में देख लेते, यहां क्या करेंगे और क्या करेंगे, औलादु ना, क्या होगा, औलादुन, औलादुन, और ये भी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, औलादुन मुज्तहिदुना, मेहनती लड़के, कुछ मेहनती लड़के। क्या तर्जुमा कर देंगे, कुछ मेहनती लड़के। ये रफा में हो गया। नस्बे में क्या होगा, औलादन, औलादन मुज्तहिदीना, क्या होगा, मेहनती लड़के, कुछ मेहनती लड़के। ठीक, उसके बाद देख ले, जर में भी, जर में क्या हो जाएगा, औलादीन हो जाएगा। अलबत्ता जर में क्या हो जाएगा, औलादिन मुज्तहिदीना। और ये जर में क्या हो गया था, अल औलादिल मुज्तहिदीना। ये यहां अगर कुछ मिस्टेक हुआ था तो नोट उसको सही कर लीजिएगा। अल औला
दिल मुजतहिदीना, किस में? जर में। और यहां क्या हो जाएगा? औलादिन मुजतहिदीना। ठीक है। अल बिंतुल आबिदतु, इसे अगर नकिरा बनाना चाहे तो बिंतुल आबिदतुन, और नस्ब में बिंतन आबिदतन, जर में बिंतिल आबिदतिन। एक आबिदा लड़की, ठीक है, कोई आबिदा लड़की, कोई इबादत गुजार। अल बिंतानिल आबिदतान, यहां क्या करेंगे? अलिफ लाम हटा देंगे। ठीक। बिंतानी आबिदतानी, कोई दो आबिदा लड़कियां, कोई दो आबिदा लड़कियां, ये रफ़ में है। नस्ब में क्या हो जाएगा? अल बिंतैनी, हाँ, बिंतैनी आबिदतैनी, बिंतैनी आबिदतैनी। ठीक है। इसे आइन को आप इस तरह लिख देते हैं, बिंतैनी आबिदतैनी। जर में भी क्या हो जाएगा? बिंतैनी आबिदतैनी। ठीक। अल बनातुल आबिदातु, यहां क्या करेंगे? तो क्या बचेगा? बनातुन, बनातुल आबिदातुन। और नस्ब जर में क्या हो जाएगा? नस्ब और जर में क्या होगा? बनातिन आबिदातिन। कुछ आबिदा लड़कियां, कुछ आबिदा लड़कियां। कुरान करीम से भी कुछ मिसालें देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। ठीक है। तो मुरक्कब तौसीफी में दो अहम बातें हैं। एक ये कि पहला कलिमा मौसूफ होगा, दूसरा कलिमा उसकी सिफत होगी। और दूसरी बात यह है कि चारों लिहाज से इसमें एक दूसरे के मुआफिक होंगे, यानी एक जैसे होंगे, हर एतबार से दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है। अब मुरक्कब तौसीफी को हम लोग अगले सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज, अगली क्लास में हम लोग मुरक्कब तौसीफी को फिर जुमले में इस्तेमाल करेंगे। अभी तक क्या है? वलदुन मुजतहिदुन, एक मेहनती लड़का। अब ये कि एक मेहनती लड़का क्या कर रहा है? सो रहा है, जाग रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है। ठीक है। ये आगे जुमले में इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।